welcome to this special program Know Your Heritage, organized by the Department of History, Maharaja Bijli Pasi Government Postgraduate College. We all know that the UNESCO celebrates the International Heritage Week from the 19th to the 25th of November every year, and the same is celebrated by the ASI in India. However, due to the current circumstances prevailing, such celebrations are not possible. Nevertheless, this is an effort on the part of our department and the college to sensitize the students and the youth about the importance of the protection of heritage and conservation of our culture. I would like to thank our principal Dr. Mohammad Tariq for his constant support and guidance in the organization of this program. I would also like to extend my gratitude to Professor P.K. Ghosh, retired Professor, HOD, Department of Modern Medieval Indian History, University of Lucknow, Nawab Jafar Mir Abdullah, and Mr. Ravi Bhatt for sharing their views about heritage and history. तहज़ीब व तमद्दुन व अदब के गहवारे शहर लखनऊ के एक बेहतरीन इल्मी इदारे महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से उसका प्रिंसिपल मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक आपसे मुखातिब हूँ। मेरे और मेरे कॉलेज की जानिब से आप सभी नाज़रीन को आदाब, नमस्कार। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक बैनुल-अक़वामी सतह पर वर्ल्ड हेरिटेज हफ्ता मनाया जा रहा है। हमें निहायत मसरत और ख़ुशी है कि हमारे कॉलेज की काबिल तरीन प्रोफेसर डॉक्टर सनोबर हैदर साहिबा, जो कि शुबह तारीख़ से मुंसलिक हैं, उन्होंने इस सेलिब्रेशन को मनाने का क़स्द किया है। एक नहायत ही उम्दा कदम है। मैं उनको अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके मनाने से ना कि हमारे मुल्क के बच्चों और नौजवानों में जागरूकता बढ़ेगी और अवेयरनेस आएगी, बल्कि सरकारी हलके और उनके हुक्काम को भी नींद से जगाने के काम आएगी। आला हुक्काम पर दबाव भी बनेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी बजट ऐसे कामों के लिए दे सकें। उससे हेरिटेज प्लेसेस का रखरखाव यानी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट किया जा सकेगा। मुस्तकबिल में ये बहुत ज़रूरी कदम होगा। हमारे मुल्क में 38 मकामात यूनेस्को के ज़रिए शुमार में लाए गए हैं। 30 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स यानी कल्चरल और नेचुरल हैं। मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात इसको अच्छे से मनाने के लिए हैं। इसकी कामयाबी के लिए मैं दिल से मुतमन्नी हूँ। सभी का शुक्रिया। जय हिंद। During our virtual tour, we shall be covering 2 heritage structures situated in Lucknow, the Neel Gate in Kaisar Bagh and the Sikandar Bagh. In the background, we can see the lofty Sikandar Bagh gate, and to talk about it, we have the privilege of having with us Mr. Roshan Taqi, who is a historian and an authority as far as the history of the city of Lucknow is concerned. Talking to us today about Sikandar Bagh is Mr. Roshan Taqi. Taqi Saab does not need any introduction. He is a historian, an author, a heritage activist, and a recipient of various awards and laurels for his contribution in the field of history and culture. Welcome, sir. Thank you. Thank you once again for joining us. तो सर, जैसे कि हमने बात करी, आज हम सिकंदर बाग में आए हुए हैं, तो इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब बना था, कैसे बना था, किसने बनवाया था, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। You see, this is a heritage site and popularly known as सिकंदर बाग। एक चीज़ तो जो है कि सिकंदर बाग आपने पूछा कैसे बना, किसने बनवाया और फिर ये कैसे बर्बाद हुआ और आज इसकी क्या स्थिति है, हम इस पर बात कर सकते हैं। तो जस्ट टू स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन, सिकंदर महल was the wife of the last king of Awadh, Wajid Ali Shah. And Wajid Ali Shah, when he was heir apparent of his father Amjad Ali Shah from 1842 to 1847, he got married with Sikandar Mahal.
और सिकंदर महल ने जब ये बहुत रिक्वेस्ट की किंग से कि हमारे लिए एक ऐसी जगह बनवाइए जहाँ सिर्फ हम हों और आप हों, तो वाजिद अली शाह ने ये सिकंदर बाग की तामीर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पैलेस स्टार्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कैसर बाग. दिस वाज नोन एज चौरुखी कोठी ऑल्सो. वाई? बिकॉज 4 persons, गुलाम रज़ा ख़ान, दयानतुद्दौला, साबिर ख़ान and one Kashiram. These 4 persons were involved in construction of this building. Basically it is said कि काशीराम ने इसकी ड्राइंग बनाई थी और साबिर ख़ान जो छोटे ख़ान के नाम से मशहूर था, ही वॉज ऑल्सो गुड आर्किटेक्ट, और उसने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाया था. सो द 4 persons in a row started construction of this building. So within a year it was completed and Sikandar Mahal shifted here. सिकंदर महल की एक ख़ास बात यह है कि शी हैज़ द प्रिविलेज टू बी द डियरेस्ट वाइफ ऑफ द किंग. आपको याद होगा कि कैसर बाग में बसंत के ज़माने में जश्न बसंत के नाम से एक जोगिया मेला होता था. उस जोगिया मेला में वाजिद अली शाह जोगी बनते थे और उनकी यही बेगम सिकंदर महल ही जोगन बनती थी. बट टाइम इज़ नेवर ऑल द टाइम्स इन फेवर ऑफ ऑल पर्सन्स. तो समय बदला, सिकंदर महल बीमार हो गई एंड 1853 में शी डाइड हेयर इन दिस पैलेस ओनली. उस समय वाजिद अली शाह भी बीमार थे और उन्होंने सिकंदर महल की डेथ पर बहुत ही गम जताया. एक लंबी पोएम भी उन्होंने उनके गम में लैमेंट लिखा है. तो उस समय वाजिद अली शाह भी बीमार थे और जब उनको ये ख़बर मिली कि सिकंदर महल अब नहीं रहीं तो उन्होंने एक गमगीन पोएम, एक नज़्म लिखी जो रिकॉर्ड है. तो ये कहा जा सकता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदर महल यहाँ कोई रहने वाला न था, बिकॉज सिकंदर महल हैड नो इशू. तो कोई वारिस नहीं था, तो ये जो सिकंदर बाग था ये ऐसे ही पड़ा रहा. देन अगेन द सेकेंड पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस लोकेशन स्टार्टेड व्हेन द फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम started here. In 1857, this was 16th of November when the British forces attacked this place. The Awadh regiments, one was Tirsha Risala and one more was a regiment there. 2 regiments were here to protect this place. Then Colonel Edward wrote in his book that after the command of Outram, the attack was ordered and it was such a fierce fighting here that Colonel Mudford, the enemy writer, he has written that I have never seen such a rageful battle. And the Awadh forces fought back like devils. Inch by inch they were pushed, but they never left a single inch of the land. And as a result, all 2,200 soldiers were killed here. After the debacle, there was mourning, बहुत गम था, सब कुछ था. उसने आउटरम ने अपनी ही डायरी में ये लिखा कि there were heaps of dead bodies and wounded persons, not less than 5 feet in height.
तो नो एनीबडी कैन इमेजिन कि जो 5 फुट की ऊंचाई तक ढेर होगा लाशों का, उसको काउंट करना, उसके नज़दीक जाना, इट वाज वेरी हॉरिबल। लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें से एक भी, दोनों रेजिमेंट जो यहाँ अवध की थी, एक भी नहीं बचा, इसलिए कहा जा सकता है कि देशभक्तों ने कभी भी वॉर में, बैटलफील्ड में पीठ नहीं दिखाई। दिस वाज द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। Thank you, sir. This site is definitely very important because it relates to one of the most important events of Indian history, the First War of Indian Independence, 1857. This Sikandar Bagh was the high walled enclosure of about 120 acres of land. And in the center, there was a beautiful construction known as Sikandar Mahal and a very beautiful wooden pavilion of black shisham. All those things were destroyed during 1857 turmoil, and this point where we are standing, this was the place where the maidservants, the orderlies, all those others lived here, and they were ready every time for any call from Begum. So you can see this one, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर नौकर, काम करने वाले, मेड सर्वेंट रहते थे, और उन्होंने यहीं पर अपना एक छोटा सा किचन बना रखा था। ये पोर्शन किचन का है और यू कैन सी, और यहाँ से थोड़ी ही दूर के ऊपर सेंटर प्लेस थी जहाँ पर सिकंदर बाग की मेन कोठी थी। 1857 के वॉर के दौरान ये सब डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इसकी पुरानी दीवारें, इसका एटमॉस्फेयर और यहाँ के ऊपर जो आने जाने वाले लोग हैं, उनके विचार इसकी कहानी सुनाते रहते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि सर ये जो सिकंदर बाग था, इसको बनाने का पर्पस क्या था? गुड क्वेश्चन। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसा कि इसका नाम है सिकंदर बाग, तो ये वाजिद अली शाह की एक बेगम, सिकंदर बेगम के नाम से ही मंसूब है। और द लास्ट किंग वाजिद अली शाह हैज़ बिल्ट इट इन द नेम ऑफ हिज वाइफ सिकंदर महल, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सिकंदर बाग। रुपीज़ 5 lakhs वर इन्वेस्टेड to build this building, and there were 4 masons, you can say mason and architect, who were involved to construct this one. सर, बताया जाता है कि सर यहाँ पे सर 2200 क्रांतिकारियों की हत्या हुई थी, मौत हुई थी, तो सर उनके वेपन कहाँ पे थे इससे? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि सारे ही जितने भी यहाँ पर इंग्लिश ऑफिसर्स मौजूद थे, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मोर देन 2000, और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 2200 अवध के सिपाही यहाँ शहीद हुए थे, और उनके सब के पास अपने वेपन्स थे। बहुत सारे वेपन्स जो थे, जो वहीं गिर गए थे, और जो हीप्स ऑफ डेड बॉडीज़ थे उसी में दब गए थे। बाद में जब अंग्रेज़ों ने इसको फ्लैट किया, बिल्डिंग को बिल्कुल ख़त्म किया, रेज़ टू द ग्राउंड, तो जो कुछ उनको मिला वो उसको उठाकर ले गए। सम ऑफ द weapons and cannonballs are there in the residency, and most of valuable weapons, including one cannon of brass, they were taken with them to England. मेरा नाम प्रमित अवस्थी है। मैं महाराजा बिजली पासी स्नातकोत्तर विद्यालय से BA सेकेंड ईयर का छात्र। मेरा क्वेश्चन है, मैंने अभी इस परिसर में देखा कि उदा देवी की एक स्मृति बनी हुई है, इसका संबंध क्या रहा है? ये अभी हम लोग मिस कर रहे थे इसको। इट्स अ गुड क्वेश्चन, और इसका भी आंसर दिया जाना, इसकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। देखिए, जब ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पर सब सफाया कर दिया, मीन्स ऑल द इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड एंड देयर डेड बॉडीज़ वर हियर इन हीप्स। एट दैट टाइम, वो टाइम वो था कि जब मज़ल में
जो कार्ट्रिज लगाना होती थी उसको मुंह से काटना होता था, और उसमें क्योंकि फैट होती थी तो वो मुंह से काटने में जब लगाते थे तो दे फील थर्स्टी। तो आफ्टर द मैसेकर द ब्रिटिश फोर्सेस फेल्ट वेरी थर्स्टी। तो उन्होंने देखा कि वहाँ के ऊपर एक यू विल सी ऑन दिस साइड कि वहाँ के ऊपर पीपल के पेड़ बहुत घने लगे हुए हैं, और उन्हीं पीपल के पेड़ के नीचे बहुत से ठंडे पानी के जार रखे हुए हैं। तो वो लोग पानी पीने के लिए उस तरफ रश किए, दौड़े। वहाँ पर पहुँचे भी ना थे, 1 by 1 was killed, nobody knows कि कैसे वो मारे गए। काफ़ी देर बाद जब उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि वो पीपल की ट्रीज़ जो लगे हुए हैं, उसकी जो घनी झाड़ियाँ हैं, बुशेस हैं, उसकी आड़ में कोई है जो वहाँ से चला रहा है। ये पता उस समय चला जब कई अंग्रेज़ अफसर प्यासे मारे गए, और उनका स्टाइल ये था वहाँ से कि दे वर नोन एज शार्प शूटर्स। तो वो बो एंड एरो इस तरह यूज़ करते थे कि आफ्टर द फ्रिक्शन व्हेन दे लीव एरो इन द एयर तो उसमें आग लग जाती थी, और जिसके वो पड़ता था वो जल जाता था। तो इस तरह कई इंग्लिश अफसर मारे गए। जब वेलेस ने इस बात देखी, कर्नल वेलेस ने, तो उसने वहाँ के ऊपर एक पूरी गन ऑन व्हील्स, ये वर्ड्स लिखे हैं, गन ऑन व्हील्स, यानी कई उसने तोपें वहाँ पर लगा के और रेगुलर फायर किया। तब एक कोई सिपाही ऊपर से नीचे गिरा। देन दे केम टू नो दैट दैट सोल्जर वॉज अ वुमन, दैट ब्लैक वुमन, जिसको बाद में बहुत से हिस्टोरियंस ने नाम दिया है कि शी वॉज उदा देवी। और उदा देवी की एक पोर्ट्रेट भी अब यहाँ पर लगा दी गई है। यहाँ पे हमने देखा बिल्डिंग में बहुत सुंदर सी आर्ट बनी हुई है, और ये विभिन्न प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सर, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये एक अलग सब्जेक्ट है पूरा, जब पीरियड कंस्ट्रक्शन का, और उस पीरियड में जो कंस्ट्रक्शन होते थे उसमें लखौरी ब्रिक्स यूज़ किए जाते थे। यू कैन सी हियर लखौरी ब्रिक्स, और उस लखौरी ब्रिक्स की साइज़ अलग अलग होती थी, और उसके अंदर मोर्टर जो यूज़ होता था उसमें इंडिजिनस मटेरियल यूज़ किया जाता था। सम ऑफ द डेकोरेटिव पोर्शन ऑफ द गेट इज़ लेफ्ट, और तो सब ख़त्म हो चुका है, देयर इज़ नथिंग टू सी। लेकिन इससे अंदाज़ एक हो सकता है कि किस तरह की पेंटिंग और किस तरह का आर्किटेक्चरल व्यू वो बनाते थे। अगर आप देखें तो उसके गेट से आपको देख के अंदाज़ हो जाएगा कि पूरी बिल्डिंग में इसी तरह का डेकोरेशन, इसी तरह का आर्किटेक्चर रहा होगा। सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर ये जो सिकंदर बाग है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे मार्टियर्स के लिए, हमारे इंडियन सिपाहीज के लिए, म्यूटिनियर्स के लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट? देखिए, इम्पॉर्टेंट तो हमारा पूरा ही अवध था, और लखनऊ चूँकि उसका स्टेट कैपिटल था, और सारी सेनाएं नॉट फ्रॉम ऑल ओवर द अवध बट फ्रॉम दिल्ली एंड अदर प्लेसेस आल्सो दे वर कलेक्टेड हेयर। तो उनका एक ही नहीं बल्कि जितने भी यहाँ के ऊपर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आलमबाग, यू विल सी कि आलमबाग में भी बहुत मैसाकर हुआ है, और मूसा बाग, देन हेयर दिलकुशा बाग, विलायती बाग। सिमिलरली सिकंदर बाग was also very dear to Awadhians and especially to the forces of Awadh. That's why the most important regiment, what we called Risala, the Janisar and तिरछा, ये दो जो रेजिमेंट थे अवध फोर्सेस के, ये कहे जाते थे कि ये शीशे की दीवारें हैं। दे वर नोन एज द कॉलम्स, द वॉल्स ऑफ लेड, यानी जो अपनी जगह से हिलते नहीं थे। एंड एवरीबडी सॉ इट, कि कोई भी उसमें से एक भी हटा नहीं, सब ने अपनी शहादत दी। और ये अपने आप में ही ये शो करता है कि उनको कितना ये प्रिय था। और इसके पीछे जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री बताई, क्यों प्रिय था, इसलिए कि ये हमारी ज़मीन के ऊपर था और हमारी बिल्डिंग थी।
अवध की बिल्डिंग थी, भारतीय बिल्डिंग थी। सर जैसे कि हमने अभी फ्रंट गेट से एंटर किया तो वहाँ पर सर मछलियों को तो पता है, लेकिन सर वो एक मोर बना है, सर उसका क्या मतलब है? मछलियों का निशान जो है वो तो अवध का निशान था। तो हर जो शाही बिल्डिंग होती थी उसके ऊपर एंट्रेंस पर मछलियों के निशान बने होते थे। और जो गार्डन्स होते थे, जितने भी गार्डन बने हैं, जब आप गेट से इंटर होंगे तो जो गेट का अंदर का पोर्शन होता था, क्योंकि उसको सिंबलाइज करते थे वो गार्डन से, वो उन एनिमल्स से और उन बर्ड्स से जो वहाँ पर हैं, तो उसको सिंबलाइज करने के लिए सबसे अच्छा सिंबल था मोर का। तो इसलिए इंटीरियर साइड में वो मोर बनाते थे और एक्सटीरियर साइड में वो मछलियाँ बनाते थे, और यही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पर हमारे यूपी में जो मोनूमेंट्स हैं उन्हें काफ़ी कम इंपॉर्टेंस मिलता है एएसआई के थ्रू। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? There are more than 200 monuments here in Lucknow, but only 60 out of them are in the protection list of ASI. और उन 60 monuments में से भी 20 जो हैं वो तो ग्रेवयार्ड्स हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके लिए प्रोटेक्शन कम है, या अगर है भी तो केयरलेसनेस ज़्यादा है। तो आई वाज टेलिंग यू कि जब डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI उस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि हम लखनऊ के इस वैल्यूएबल मॉन्यूमेंट्स को, इन हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, बट वी डोंट हैव फंड्स। उम्मीद है कि जब कुछ प्राइवेट पार्टीज़, जैसा कि दिल्ली में हुआ आपने बताया, तो दिल्ली में कुछ प्राइवेट पार्टीज़ को दिया गया है और वो उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन भी कर रहे हैं। इफ़ इट हैपन्स हियर, हो सकता है कुछ इस पर सुधार आए। सर मैं एक इतिहास का स्टूडेंट हूँ, और इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते मैं अपने इस पुरानी धरोहर के बारे में क्या अच्छा कर सकते हैं? देखिए, इतिहास का ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, बिकॉज एवरी सिटी, रिमेंबर इट ऑल ऑफ यू, every city is recognized by its legacy, not its period of today. तो अगर आप अपनी लेगेसी को, और लेगेसी हमेशा किससे होती है? आपकी हेरिटेज से, कल्चरल हेरिटेज। तो जितना आप अपना कल्चरल हेरिटेज की लेगेसी को प्रिजर्व करेंगे, मेंटेन करेंगे, कंजर्व करेंगे, वही आपकी पहचान होगी, है ना। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप जो भी राइट फ्रॉम टुडे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इसका ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम लोग यहाँ आए हैं, कल आप लोग किसी दूसरे मॉन्यूमेंट पर जाएंगे, अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, यंग कपल्स आते हैं, वो लिटरिंग करते हैं या वहाँ पर खुरच के कुछ लिख देते हैं। तो दिस इज़ ए बैड टेस्ट फॉर एनी मॉन्यूमेंट, है ना। तो आप लोगों का फ़र्ज़ ये है, हम लोगों का तो है ही है, लेकिन आप लोगों का, स्टूडेंट्स का भी फ़र्ज़ ये है कि आप लोग अगर किसी मॉन्यूमेंट पर जाते हैं और ऐसा देखें कि कोई यंग कपल या कोई टूरिस्ट वहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है जिससे नुकसान हो सकता है, तो उससे आप रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ डोंट डू इट, दिस इज़ डिज़ास्ट्रस फॉर द मॉन्यूमेंट। ओके, थैंक यू सर। ये जो अक्रॉस द रोड हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो बोटानिकल गार्डन्स के अंदर है, तो क्या वो भी सिकंदर बाग का पार्ट था और वो अलग कैसे हो गया, कैसा क्या हुआ हिस्ट्री में, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये आप एक वॉल, तो ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, एक वॉल रोड की उस तरफ है, एंड यू कैन सी ए थर्ड वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 मीटर्स। वो जो वॉल है जिसमें आपको सेमी सर्कुलर और वो दिखाई दे रहा है कुछ आर्केड टाइप का, यू कैन सी राइट फ्रॉम देयर टू दिस वॉल, दिस वाज द मेन बिल्डिंग ऑफ सिकंदर बाग। जब अंग्रेज़ों ने इसको तोड़ा और उसके बीच से ये रोड निकाली, तब ये दोनों तरफ वॉल्स बनाई गई। NBRI जो बना है, नेशनल बोटानिकल गार्डन, वो उसकी वॉल वो है, और सिकंदर बाग जिसको इन्होंने क्या कहते हैं, नोटिफाई किया है कि ये सिकंदर बाग की प्रोटेक्टेड लाइन है, दिस वॉल इज़ नोन एज द प्रोटेक्टेड लाइन ऑफ दिस पोर्शन ऑफ सिकंदर बाग। बट द एक्चुअली you can see 120 acres of land of Sikandar Bagh
is from this wall to that wall, that far wall. Heritage is timeless and speaks of immortality of art and culture. As we come to the end of today's talk, I would like to extend our gratitude on behalf of the department and the college to Mr. Roshan Taki for sharing his views about the importance of heritage and telling us about the history of this important structure, the Sikandar Bagh. I hope our effort towards creating awareness and sensitizing the youth, particularly the students, towards the importance of heritage and its preservation, conservation and protection is clear.